Okay. customers. Meanwhile, I'm trying to connect it to my the bigger machine, the Okay. screen. But let it be Okay. here. Okay. Yeah. Okay. Okay. Great, sir. No issue. Today we are having a session on the government initiatives and bank-related schemes to get understand from your side to our startups. So I will Hmm. give brief about our Anuj Malia, sir. Anuj Malia, sir, is working from around 15 to 17 years in SBI Bank and handling multiple domains in terms of startup, like banking activities and the other all related activities into the startup ecosystem. He's been also invited at many places at the incubation center, startups, and any in the startup ecosystem, many places he's been delivering and promoting this SBI startup related activities in overall Maharashtra and India. Today I will give a brief about our incubation program of this particular cohort, Anuj, sir, for you. So we have we are running currently cohort 10. We are in the process of training program of 1 month. And under this, there are around 23 startups and sorry, 22 startups. And out of them are two startups are from for the Aramba program, which is we are going to give them or we are training them for the funding up to 4 lakh rupees. And their Uday program, into this program, we are training five startups. There we are this program is for the around funding up to 5 lakh rupees. And lastly, 16 startups are there who are willing to like they are also under the training of having for the 25 lakh rupees grant, 25 lakh rupees of grant. So this is the brief. So as per your request, sir, I will request all startup one by one. I will announce the name, then we can start introduction. Your company name, what is the services, and what anything else you want to add, sir? Just in a short, it's over to you, sir. Yes, thank you. Okay, so I will take one by one name. One the first is Aditi. Hello, good morning. Hi, sir. I'm Aditi Anira. I work as an architect and a designer, and we are currently, as a part of Circuit, we are doing our work on banana fiber and how can we take banana fiber to product, which would be for architectural applications. Okay, Thank you. Okay. next is And the location also, like the precisely which place? Location. Yeah, I am currently Mumbai. based in Mumbai, Okay. and all the work that we are doing right now is in Tamil Nadu and Jalgaon. Oh, thank you. Please. okay. Next is Amit Chauhan. Good morning, everybody. This is Dr. Anupama Engineer. My company's name is Gallus Animal Health, and it's a company based in Pune. We are working on innovative nanotechnology-based product for preventing infections in poultry, which causes a huge economic loss to the farmers. So we are trying to work directly for the benefit of farmers by helping them avoid infection. Thank you. Yes, Amit Chauhan. Next. Okay, he is not, I think. Be prepared for the introduction. I will take next. Abhay Shendeji. Good morning, sir. I am Dr. Abhay Shende from Pune. My company name is Health and Yum Foods. So we convert staple food into snacks. मतलब millet, flat bread plus the condiments which we eat with that. So very healthy, tasty food which we process by a unique process, which is very, very cost effective. So we would definitely like to understand from you how we can raise working capital and at what stage. Thank you, sir. Sure. Okay, next Anaga Kherde. Hello, Yes, ma'am. Please. am Go I ahead. audible? Yes, Yes, ma'am. sir. Good morning, sir. This is Anagha Kharade, founder of Turo Savvy LLP and owning the brand Insta Sprouts. So we are into the instant sprouted food product, which is ready to eat and ready to cook. So we are currently working on the sprout category. Okay, next is Ankit Salunke.
Okay, one by one, directly startups can unmute themselves and ask the question. Yeah, myself, Dr. Sainath Kasar. I'm representing Avenir Biolumina Private Limited. We have developed multifunctional fermented biotonic for the agriculture and for crop health. It is in innovative formula, more like the water dispersible granule and dispersible gel. So this is Dr. Sainath Kasar. Thank you. Okay, next. Anyone? Unmute and directly speak. Hi, Good sir. morning, sir. Yes, Shital, continue. Good morning, sir. I'm Shital Dhaneshwar Rane. I'm from Bandara. I'm working on innovative mucus formulation incorporating jamun seeds and coumarin residue for diabetic individual as well as for others. And I'm also working on sir, some healthy mucus. Okay. Your area of work location has to be mentioned. Startup, a small statement of problem of the product you have and cover name. So next, Nilesh. Yes, sir. Yeah. Hi, sir. I'm Nilesh Khandekar. I'm based in Mumbai. I'm the founder of Shallovation. At Shallovation, we are trying to come up with a biocomposite material to reduce the consumption of thermoplastics like polypropylene. Okay, next is breathing roots. I'm located at Dadar, and our concept is pollinator patch, pollinator enhancement patch to improve seed quality and production quality. Login again. Correct your connection issues. We'll take next one. Vijay Ghadge. Yes, sure. Good morning, sir. Good morning, all. I'm Vijay Gadge. I'm from Pune, and I'm representing the the Culture Lab Food Ventures Private Limited. We are into manufacturing of ready-to-drink beverages, that is tea and coffee, and we have a patented process. We have applied for the patent for the pre-processing of tea and coffee material prior to freeze drying. We are Okay, based out of Pune. Thank you. okay. Next, Roshan Aglave. Hello, good morning, sir. My name is Roshan Bhasa Baglave, and I am the founder of Nutrifix Superfoods Private Limited, a venture which is purely focused on healthy and sustainable snacking. Basically, we are focusing on how we convert chicken into palatable and portable food. So currently, we are located in Sangamner. Okay. Next, Swaminath Bhandwalkar, sorry. Yes, sir. Good morning, all. My name is Swaminath Bandolkar. I am from Solapur. My company name is Sapri Food. My company also established in Solapur. We are working in our product name is Moringa X. We are making Moringa soup cubes, which is we are selecting raw material from farmers and make it soup and then convert in a dry form, make it cubes and packaging, which is healthy and nutritious soup. Thank you. Okay. Next, Ratnesh Hire. Good morning, sir. I am Ratnesh Shire. I am currently at Baramati near Pune. I am the founder of Honeygum. Basically, we are working on biodegradable chewing gum, which is made from honey and bee wax. Thank you, sir. Okay. Next, Mufazzal ji. Orange City Places Private Limited. Is it there? Okay, Green Move India, next startup. Hello, sir. Amar Shirsat from Green Move India Private Limited, Nagpur. Sir, we are working on waste management, agriculture waste management, and our project is post harvest preservation using biochar. Okay, next Sudarshan Patil. Sorry, Sudarshan. Yes. Hello. Yes, sir. Good morning. Sir, our company name is Fusion Plus, and sir, our company, sir, नंतर कसं मी? Yes, yes, please continue. Yes, yes, you are audible.
नंतर देऊ का? चालेल, नंतर द्या, काय अडचण नाही. ओके सर, हा, ठीक ते आहे. प्रश्न Okay. असतो. If any startup is remaining for the introduction, please introduce them if I'm missing any name. Hello, sir. Hello, everyone. Ankit Saunke here. I have completed my bachelor's in technology in food technology. My project is liquid spice, proprietary liquid spice. I procure the spices from the farmers, and I use my technology to extract the spices, and I supply it to the market. Thank you. ये तो मगर दिख नहीं रहा मुझे किसी का वीडियो. Good morning, sir. This is Amit Chavan from Tech Solutions Private Limited. And our project name is Automated Milk Quality Control System, which is dairy automation. And we are basically from Pune region. Okay, great. Thank you. I think all startups have given the introduction. Yes, yes. Yes. Good morning, sir. Myself Chetan Sarnabat from Kolhapur. Yes. Chetan, you So can. my, Yes, your Chetan. voice is breaking. You yeah, can my turn off project name camera. is tractor mounted sugarcane harvesting machine. It's a whole stock harvester attached to a tractor, which is very much beneficial for the small and marginal land holding sugarcane growers farmers. Okay. And we are located Nagpur. Kolhapur. Kolhapur. Okay, please go ahead. Yes, sir. So, sir, this is my project, and it has got the patent. Mm-hmm. Yes, sir. And looking forward for your kind guidance. Sure, sure. We will. Thank you, sir. Yes, sir. All startup has given the introduction. Okay. Okay. Thank you there. Am I audible? Yes, yes. Very loud, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now, I'm on my VC system. So, thank you for inviting me for the session. I mean, we can have dual communication. Either we can make it interactive, but being an online, it may create some kind of chaos. Or let it be a monologue, and going further, then I'll be coming to your queries. Is it fine? Yes, perfectly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, that's sure. Okay, fair enough. Okay, thank you. So, first of all, let me ask you, how many of you are kind of more than 1 year old startup and are into they're already into the revenue generation? Me, myself, Chetan Sarnabat. Okay. This is Vijay. Okay. Me also, Dr. Abhay Shende. Sir. So this is Swaminath Bandwalkar. Okay. Yes, here, me too. Gallus Animal Health. Oh. Hello, I'm Dhana Sribasute. Me too. Green Move India Private Limited. So me too. Orange City Lyceus Private Limited, Nagpur. Oh, quite a few. Okay. Any one of you, I mean, do you have any kind of funding from any of the NBFC or any of the banks? No, sir. No. Presently, we are a bootstrap company. Okay. Going further, let me ask the question other ways. How many you are at a prototype stage or pre-revenue stage? So we are at a pre-revenue stage. We already have a MSP, market sellable product. It's already patented. My earlier question was, how many of you are making revenue and are more than, I mean, they are older than 1 year old? Sir, I would we I would are. like to add for the answer for this, because I know all the startups. Yes, exactly. Yes, You are the right 7 to 8% are startups are under pre-revenue stage. They are yet to generate a revenue, and Okay. around remaining all startups are generating a revenue from 2 lakhs to 7 to 10 lakh rupees. That's okay, but are they making it for more than one year? Yeah, last financial year they have told us. Yes. Okay, thank you. That is what I wanted to know. Yeah. See, the reason behind asking this question is to reach out. I mean, let me tell you, there are three kind of things that you get from the whole banking system or the government subsidy system. One is grant, one is loan, and one is equity. Probably, let me tell you the difference in all these three type of things. Like if you go to any of the institution like CIRCOT, ICAR, Maharashtra Innovation Society, or any
of the Bright Incubation Center, they have these provisionings. I mean, grant is something which is given on the merit and the requirement, and it is not repaid. Second thing, but grant has their own constraint because the platform is limited, the scope is limited, and it is not a predefined. There are not predefined conditions because for every institute and every organization, it will be a different criteria. Then coming to debt, which is the most popular notion and the most sought after. Is it fine if I speak in English or in Hindi? Yes, it is fine, sir. Okay. No issue, sir. Marathi is also fine, sir. Okay, I am quite new to Mumbai. Sorry for my apologies for having limited communication. Okay, तो डेट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर. हम क्या करते हैं जब भी एक वेंचर को, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वी लुक फॉर कि कोई ऐसी जगह से मिले जहां पे कि हमारे वेंचर को, हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए लोन हमको आसानी से मिल जाए. अब इसके पीछे बहुत ही पॉपुलर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसकी विजिबिलिटी बहुत दिखती है, मगर हमें वो माध्यम, वो नोट्स नहीं पता होते कि हम वहां जाकर के हाउ टू अप्रोच दीज प्लेसेस. आई एम श्योर कि कुछ बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया है, मुद्रा लोन है, या नारी शक्ति है, या CGTMSE है, CGSS है. ये 5 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनके विषय में मैं मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स तो नहीं कहना चाहिए, ये बैंक्स के लेंडिंग अप्रोच है जिसको कि गारंटी करता है गवर्नमेंट पीछे से. मैं आपको इसका मतलब ये समझाता हूँ कि गवर्नमेंट बैंकों को यह आश्वासन देता है कि अगर आप इस स्कीम के तहत लोन देंगे और गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, सर्टेन कंडीशंस के बाद ये लोन खराब हो जाता है, तो ये इस पैसे की भरपाई हम करेंगे, वो जो हमारे गारंटी फंड्स हैं वो करेंगे. आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes, we are following. जी सर. गुड, ठीक है. Yes, sir. तो हमको एक चीज जब भी, और समस्या क्या होती है जब भी हम बैंक्स के पास जाते हैं, तो आप लोगों के ज्यादातर के ये अनुभव होंगे कि वो बहुत ही वो जैसे कि रिटेल लोन को लेकर के, या फिर किसी कोई कार लोन को लेके, या किसी बड़े प्रोजेक्ट लोन को लेकर के जितने वेलकमिंग होते हैं, उतने वेलकमिंग शायद मुद्रा लोन या स्टैंड अप इंडिया लोन या फिर CGTMSE लोन को लेके नहीं लगते हैं. मतलब, और ये पॉपुलर नोशन भी है. आप इसके 2 कारण है. पहला कारण ये है कि द क्यू फॉर दिस, जो लोग इस लोन को, जो टिकट साइज है 10 लाख से लेकर के 50 लाख या 60 लाख तक का, वो उसमें क्वांटम बहुत ज्यादा है. तो हमें बिफोर अप्रोचिंग एनी बैंक, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि हमें किस तैयारी के साथ जाना है, हमें किस तैयारी के साथ वहां पे अप्रोच करना है, तो ये हमारा बहुत टाइम, हमारा बहुत रिसोर्स बचाएगा. प्लस जब हम वहां एक प्रिपेयर्डनेस के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली उस बैंकिंग सिस्टम को ये समझ में आएगा कि दे आर सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, देयर फाइनेंसेस, एंड ये हमारा भी हमको इनको फाइनेंशियली लिटरेट करने की जरूरत नहीं है. वरना होता है क्या है कि ऑब्वियसली इस टिकट साइज में क्या होता है, कोई अपना फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग लेके नहीं चलता है, तो 1 या 2 ही आदमी को अपना बिजनेस भी मेंटेन करना होता है, अपना मार्केटिंग भी करना होता है, अपना सेल्स भी करना होता है, एक्सपेंशन भी करना होता है, और साथ ही साथ में अपने फाइनेंसेस भी मैनेज कर ले होते हैं. तो मैं आपको इस सेशन में ये पूरा प्रयास करूंगा, गोइंग टू गिव माय बेस्ट शॉट, कि इसमें आपको ये कोई इंफॉर्मेशन गैप ना रह जाए. फेयर इनफ. तो अब मैं ये जो 4-5 किस्म के लोन्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं. तो ये लोन क्या होता है कि पहले हमें ये नोशन अपने दिमाग से हटा देना चाहिए कि गवर्नमेंट दे रही है. असल में ये कंडीशन है कि बैंक दे रहे हैं और गवर्नमेंट उनको गारंटी दे रही है. गारंटी क्या दे रही है कि अगर गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर ये लोन खराब होता है तो हम आप इस लोन की भरपाई करेंगे. बैंकों के साथ ये समस्या होती है कि ये लोन देते समय उन्हें कुछ कंडीशंस को टिक करना होता है. आप समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको मुद्रा लोन या फिर स्टैंड अप इंडिया की कंडीशन के बारे में बताता हूं. मुद्रा लोन किसी भी एंटिटी का पहला लोन होना चाहिए, और स्टैंड अप इंडिया भी पहला ही लोन होना चाहिए, और ये दोनों बिजनेस इनिशिएट करने के लिए ये लोन होते हैं. ठीक है. अब बिजनेस इनिशिएट करने की बहुत परिभाषा है कि आप किस स्टेज में है. अभी आपका बिजनेस प्लान कागजों में है, या फिर आपने प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, या प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद एक पर्टिकुलर जगह को कैटर कर रहे हैं. तो मैं आपको बैंकिंग कंफर्ट बताता हूं. कहीं भी जाते होंगे, अगर किसी भी नॉर्मल बैंक में जाएंगे
तो वो आपसे कहेंगे कि वो इतनी ढेर सारी चीजें मांग लेंगे, वो कहेंगे कि 3 साल की बैलेंस शीट लेकर के आइए, और उसके बाद आपके जो ऑर्डर्स इन हैंड है वो लेकर के आइए। तो अमूमन क्या होता है कि स्टैंड अप इंडिया या मुद्रा लोन इस टिकट साइज में, उदय जी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे किसी की भी लोन रिक्वायरमेंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा तो नहीं होगी इनिशियली। नहीं है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी हम स्टैंड अप इंडिया, नारी शक्ति और मुद्रा के बारे में बात करते हैं। ओके, तो मैं आपको साफ साफ ये बता देता हूं, इन तीनों लोन के लिए आपको किसी प्रकार की बैलेंस शीट की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑडिटेड है तो अच्छी बात है 1 साल की, ठीक है ना, है तो कोई उसमें बुराई नहीं है, मगर दिस इज नॉट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको प्राइमरी रिक्वायरमेंट बताता हूं क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि फिजिकली जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी जो जो आप या प्रपोज कर रहे हैं, वो एक्टिविटी का एविडेंस होना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग है या फिर प्रपोज मैन्युफैक्चरिंग है और आपको वहां पे कोई मशीन इंस्टॉल करना है, तो वो जो जगह है जहां पे आपको ये सारे काम करने हैं, वो जगह एग्जिस्ट करनी चाहिए और आपका वहां पे एविडेंट होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर आप मुझे लोन दे दीजिए, उसके बाद मैं जगह ढूंढूंगा, उसके बाद में मशीन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट मेरे ख्याल से, प्लीज से यस। इसको इसको हम सामान्य बैंकिंग भाषा में कहते हैं, Yes, sir. सामान्य बैंकिंग भाषा में कहते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और दैट रिपोर्ट शुड बी बैक्ड बाय फ्यू एक्टिविटीज और फ्यू एविडेंसेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो पार्टिसिपेंट जो 1 साल से ज्यादा, जो कि मेजोरिटी मुझे बताया गया कि 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा से रेवेन्यू मेकिंग है, उनके सामने समस्या नहीं आएगी अगर वो इन दोनों स्कीम्स के लिए, या एक स्टैंड अप इंडिया का एक रिप्लेसमेंट है नारी शक्ति स्कीम, इन स्कीम्स के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका फ्यूचर का प्रोजेक्शन क्या है और उसका आधार क्या है, यानी आप किस डोमेन को कैटर कर रहे हैं उसका, आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर्स इन हैंड है, तो उस ऑर्डर्स इन हैंड की कॉपी लेकर के, और आपका अभी तक का जो बैंक स्टेटमेंट या जो रेवेन्यू मॉडल है उसको लेकर के, और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आप इस स्तर पे इतना इतना आपका रेवेन्यू होगा, और अगर आप जो लोन देंगे इस तरीके से। ये एक, लोग जनरली इन सब चीजों के लिए सीए के पास जाते हैं, मगर अगर आप अपने बिजनेस को भली भांति समझते हैं, ठीक से समझते हैं, तो आप समझेंगे कि आपको कितना लोन का अमाउंट मिल रहा है। क्योंकि अमूमन ये लोन का रिपेमेंट, जो कॉमर्शियल लोन होता है उसका रिपेमेंट 3 से 7 साल का होता है, और ये आपकी एक्टिविटी के लिए होता है। अब देखिए, 2 तरह के लोन आपको बैंक से मिलते हैं, या तो आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिलेगा या तो आपको टर्म लोन मिलेगा। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का अर्थ ये होता है कि दिस इज द कैपिटल जो कि हम अभी इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों में से कोई करते हैं, तो वो अपने पास से पूंजी लगा करके एक सर्टेन प्रोडक्ट बनाने में लगाते हैं, जिसमें उनका लेबर लगता है, जिसमें उनका रॉ मटेरियल लगता है, एंड इट टेक्स सम टाइम टू रीच टू इट्स फाइनल स्टेज, और उसके बाद वो मार्केट में जाके उसकी सेलेबिलिटी होती है और बिकता है, और जब एंड यूजर के पास पहुंचता है देन यू गेट द मनी। इस पूरे टाइम को कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में आपकी जो पूंजी लग रही है और आपको पैसा जब वो वापस आ रहा है, इसका जो है तकरीबन 75% हिस्सा आपको बैंक से फाइनेंस हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप पूरे साल में, अगर उन लोगों के लिए पहले खास तौर पर मैं बात करता हूं जिनकी पिछले साल की सेल है, अगर मान लीजिए आपके पिछले साल की सेल अभी मान लीजिए 6 लाख रुपए है, और आपका ये वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी आपकी पूंजी लगाने के बाद से पूरा पैसा वापस आने में आपको 2 महीना लगता है, यानी आपके पूरे साल में ऐसे 6 वर्किंग कैपिटल साइकिल होंगे। यानी अगर आप कहीं जाते हैं तो आप बोलते हैं साहब मेरी इस साल की सेल 6 लाख है, और अगले साल देखिए इस वर्क ऑर्डर इन हैंड में लेकर के मेरी सेल 12 लाख हो जाएगी, तो या 9 लाख हो जाएगी, तो और आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट से या अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को दिखाते हैं और लगता है कि साहब आपका तो 2 महीने में पैसा आ जाता है, तो डिवाइडेड बाय 6 आपको मिलेगा, तो 12 लाख का डिवाइडेड बाय 6 हुआ 2 लाख। तो हमको ये बेसिक मॉडल, जैसे हमसे हम लोन के बारे में सोचे तो हमें सबसे पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि ये लोन हम किस चीज के लिए ले रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए हमको अपना कैश मॉडल मालूम होना चाहिए। हम सबका कैश मॉडल अलग अलग है, आप में से कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ ट्रेडर हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ कंसल्टिंग हैं, कुछ हाइब्रिड बिजनेस में हैं। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम वर्किंग कैपिटल जब लगा रहे हैं तो वो पैसा कितने दिन में वापस आ रहा है,
और इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके, यानी कि हमारा जो आने वाले ऑर्डर्स इन हैंड है, अगले साल ये प्रक्रिया क्या रहेगी। और देखिए, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वर्किंग कैपिटल साइकिल कभी भी मत बोलिएगा कहीं किसी बैंक में कि वो 90 दिन से ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उससे रॉबस्टनेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट इकोसिस्टम पे आती है। ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जहां की 4 महीने 5 महीने में आता है। तो प्रयास कीजिए कि आप वर्किंग कैपिटल साइकिल अपना मैक्सिमम 60 दिन से 90 दिन के बीच में रखिए, और इंश्योर कीजिए कि आप अगर आप रेवेन्यू मेकिंग है तो वो अपने एविडेंस में दिखा सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सरल चीज होती है। ठीक है, ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है और आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिख रही है, तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है कि आपको एक वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाएगा। अभी मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ज्यादातर बैंक जो हैं 10 लाख के ऊपर का मुद्रा लोन स्ट्रेट अवे नहीं दे रहे हैं। वो 10 20 वो जिन लोगों ने ऑलरेडी 10 लाख तक के मुद्रा लोन लिए हुए हैं, ये कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं है, जस्ट टू प्ले सेफ। ज्यादातर बैंक ऐसा कर रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी 10 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का मुद्रा लोन लिया हुआ है, उन्हीं को इन्हांसमेंट करके 17 लाख 18 लाख कर दिया। ऐसे बहुत ढेर सारे कंडीशंस हैं जो कि मैं वर्किंग कैपिटल के बारे में बता रहा हूं। गोइंग फर्दर, दूसरा तरीका होता है टर्म लोन, यानी कि आपको एक मशीनरी की जरूरत है, आपको एक फैक्ट्री बनाने की जरूरत है, आपको अपने ऑफिस की अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उसके लिए आपको एक टर्म लोन चाहिए। अब देखिए, टर्म लोन की एक एक कंस्ट्रेंट ये है कि हम किसी इंटेंजिबल के लिए नहीं दे सकते हैं। तो आप कभी भी किसी लोन के लिए जाएं, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स स्पेस आ गया है और ई कॉमर्स स्पेस में काफी पैसा लगता है, जिसमें कि आपको विजिबिलिटी के लिए, एड्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी बैंक के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि उस चीज के लिए आपको पैसा दे। तो आपको टर्म लोन ऐसी चीज के लिए मिल सकता है जिससे कि आपका या तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला हो, आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ने वाली हो, जिससे आपकी सेल बढ़ने वाली हो, कोई टच एंड फील चीज जैसी चीज, आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने वाला हो, आपका वेयर हाउसिंग बढ़ने वाला हो, ऐसा कोई व्हीकल खरीदने वाले हो जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने वाला हो, कोई मशीन हो। तो इन सब चीजों के लिए टर्म लोन दिया जा सकता है जिससे कि आपकी प्रोडक्शन इन्हांस हो और बढ़े। मगर आपको जब भी आप किसी लोन के लिए जाएं, आपको स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि आप जो चीज इंस्टॉल करने जा रहे हैं उससे कंजर्वेटिवली, आप कभी भी मैक्सिमम नहीं बताना है, क्योंकि जब आप मैक्सिमम बताते हैं और आप मैक्सिमम रीच नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में आपके लोन टेकिंग क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो पहली चीज हमें जो करनी है, हमें कंजर्वेटिव, अगर आपको लगता है कि अगले साल आपकी सेल 10 लाख से बढ़ के अगर पैसा करेंगे कि 25 से 30 लाख हो जाएगी। देखिए, हर आदमी अपने बच्चे, अपने बिजनेस को लेके बहुत ही सकारात्मक होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है, उसको हमेशा लगता है कि ये बेस्ट करेंगे। मगर हमको जब भी बैंकिंग पैरेलल्स में या उस बारे में बात करना है, कंजर्वेटिव फिगर देना कि इतना तो हम डेफिनेटली कर लेंगे, है ना। कारण क्या है कि आपका बैंकिंग रिकॉर्ड आने वाले समय में, अब 5 करोड़ तक के लोन के लिए एआई नाम की एक व्यवस्था आ गई, जिसको कहीं बिजनेस रूल इंजन कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हर इंडस्ट्री का डाटा डाल दिया गया सिस्टम में, उसके अंदर आपकी सेल अपडेट की जाती है, उसके अंदर आपकी इंडस्ट्री डाली जाती है, और उसके अंदर आपके पिछले कुछ महीनों का अकाउंट स्टेटमेंट और आपका एक्टिविटी लेवल डाल दिया जाता है। और सिस्टम खुद निकाल के दे देता है कि आज से 2 साल के बाद अगर आप अच्छा करते रहे तो आपकी सेल कितनी होगी और आपको कितने लोन की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से आई एम एबल टू कम्युनिकेट माई सेल्फ। Yes, Yes, yes. sir. ओके, थैंक यू, Yes, sir. Yes, sir. लेट मी गो हेड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है, कहता है कि साहब मेरी सेल अभी 10 लाख है और मुझे एक मशीन मैं इंस्टॉल करूंगा तो मेरी ये जो सेल है ये 30 लाख हो जाएगी, ठीक है, या 40 लाख हो जाएगी, या 20 लाख हो जाएगी, और उस मशीन की फलानी कीमत है और उससे मैं इतना प्रोडक्शन बढ़ा लूंगा। तो पहली चीज हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो मशीन की कीमत है उस पूरी कीमत कोई भी बैंक नहीं देता है। एक चीज होती है मार्जिन, जो कि बोरोअर को लेके आनी पड़ती है, और एक चीज होती है बैंक लोन का अमाउंट। कभी भी जो एवरेज मार्जिन होता है, जो डेट इक्विटी रेशियो होता है, वो होता है 3:1। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कहीं भी 75%, हो सकता है कहीं अपवाद मिल जाए आपको, मगर 75% से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। तो जब भी आप बैंक के पास जाएं अपने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, अगर आपकी टर्म लोन की रिक्वायरमेंट, यानी आपकी उस मशीन को खरीदने की रिक्वायरमेंट या आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट 10 लाख है, तो आपको इस बात की तैयारी के साथ जाना पड़ेगा कि जो 25% पैसा है हम ला रहे हैं और कहाँ से ला रहे हैं।
और हमारे बिजनेस में हमारे पास इतना पैसा है, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है जो आप दे रहे हैं, उसको हमको बहुत ही एहतियात से, बहुत ही कंजर्वेटिवली, बहुत ही इतना तो हम डेफिनेटली आपको, अगर आपको लगता है कि आप इसको 5 साल में पे कर देंगे तो आप बोलिए कि नहीं, हम 7 साल में तो पे कर देंगे। इसीलिए हमेशा जो रिपेमेंट पीरियड है वो मैक्सिमम लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी लोन को अगर आप पहले पे करते हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के पास जा रहे हैं, किसी नेशनलाइज्ड बैंक के पास जा रहे हैं, और मेरा पूरा प्रयास है, मैं उदय जी के माध्यम से मैं कुछ नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, अमरावती, कोल्हापुर और पुणे का भी फिलहाल करा दूंगा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप राइटफुली आप सिरकॉट जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप डीपीआईटी रजिस्टर्ड है, आपका उद्यम आधार है, और आपकी एक्टिविटी ठीक ठाक चल रही है, और आपका सिविल डिफॉल्ट नहीं है, तो प्रयास करें। थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा होती है, पेशेंस टेस्ट होता है कि किसी नेशनलाइज्ड बैंक के करेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाए, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर नेशनलाइज्ड बैंक की तरह तरह की ब्रांचेस होती हैं, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस ब्रांच में जाना है। लोग अमूमन अपने फैक्ट्री या घर के सबसे निकट वाली, करीब वाली ब्रांच में चले जाते हैं, और उन्हें वहां पे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे नॉलेज गैप्स होते हैं। अब आप लोग में से ज्यादातर लोग एमएसएमई में या फिर लघु उद्यम में ऐसी चीजों में ऑपरेट कर रहे हैं, मगर आप में से अगर कोई भी आदमी किसी रिटेल बैंकिंग ब्रांच में चला जाएगा, जहाँ की पेंशन या कैश इन सब चीजों को डील की, तो आपको सही उत्तर वहां से प्राप्त नहीं होगा। तो पहली चीज जो सबसे मुख्य बात है कि आपको अपनी ज्योग्राफी में जो एसएमई ब्रांच है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन की ब्रांच है, या कोई स्टार्टअप की ब्रांच है, उनका आइडिया होना चाहिए। वहां जाएंगे तो सबसे पहली चीज क्या, आपको इन्फॉर्मेशन गैप नहीं होगा। आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि आपको उनके, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टर्म लोन थिंग एंड वर्किंग कैपिटल थिंग। तो अभी इन दोनों चीजों का जो मौलिक अंतर है, मैं समझाने में सफल रहा हूं? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी इफ एनीबडी इज नॉट ऑन द सेम पेज और उस विषय में कुछ बात करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। एनीवेज, लेट मी गो फर्दर। अब जब जब भी हम किसी लोन के लिए जाते हैं, तो पहली बात समझ लीजिए कि मैं जिन स्कीम्स के बारे में बात कर रहा हूं, या आप जिस स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट हो चाहे ना हो, मगर आपका पुख्ता प्रोविजनल बैलेंस शीट और आने वाले समय में आपका जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है वो तैयार होना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, कभी भी ये शार्क टैंक इंडिया नहीं होते हैं बैंक्स, कि आप ये बता दें कि आज तो हम 10 लाख कर रहे हैं, मगर आने से 2 साल के बाद 60 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी लेंडर होता है, मतलब उधार देने वाला होता है, वो हमेशा कंजर्वेटिव सोचता है कि मिनिमम मैं इसको पैसा दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं। तो हमेशा वो फिगर लेके जाइए जो डेफिनेटली आने वाला है, आपके उस पर्टिकुलर मशीन इन्वॉल्व इंस्टॉल होने के बाद, या फिर आपके उस वर्किंग कैपिटल को लेने के बाद, और उसको आप जस्टिफाई कर सकें अगर वो आपकी साइट पे आकर के देख सकें। अब फॉर एग्जांपल, आपने मुश्किल से 20 बाई 20 की एक साइट ली हुई है, जिसपे कि बहुत मुश्किल से आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से आप पूरे साल में 10 लाख का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आप ये कहें कि साहब कि आप मुझे टर्म लोन दे दीजिए और मेरा प्रोडक्शन बढ़ के 40 लाख हो जाएगा, तो एनीबडी वुड अंडरस्टैंड कि इसके लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत है ना। तो अमूमन बैंकिंग पार्लेंस में क्या होता है कि किसी भी नए उद्यम के लिए वो ये मान के चलते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे तो 20% करेंगे ग्रोथ। अगर आपने 10 लाख किया है और तो अगले साल आप 12 से 13, ये एवरेज है। मगर अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं साहब, हमारे पास ऑर्डर्स इन हैंड बहुत ज्यादा है और मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए गूगल या फिर खुद का रिपोर्ट आपको नहीं देना है, एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए होता है। उसके लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन मतलब, अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जो किसी मेल पे आया है, कोई एमओयू है, आपके पास परचेज ऑर्डर है, तो इट शुड बी पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और मगर आपको सिर्फ ये लगता है कि मार्केट में इतना पोटेंशियल है, तो उस बात को वैलिडेट करने के लिए आपको कोई सब्सटैंशियल चीज देनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ विल नॉट स्पीक। ठीक है, तो अब ये जो दो चीजें हैं, और इस चीज के विषय में हम मैं आगे अगर बढ़ूं, तो टर्म वर्किंग कैपिटल जो है मैंने अभी बताई थी, अब वापस उसके ऊपर आता हूं। उसमें एक चीज होती है आपका स्टॉक,
मतलब आप वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय करके आप स्टॉक खरीदते हैं। दूसरी चीज होती है, चलिए आप स्टॉक नहीं खरीदते हैं मगर आप अपनी मेहनत लगाते हैं और एक सर्विस देते हैं और आप इनवॉइस रेज करते हैं और एक बिल प्रस्तुत करते हैं, उस बिल को ऑनर होने में समय लगता है, तो उसे हम कहते हैं डेटर्स या डेट्स या बुक डेट्स। ठीक है, तो जब भी आप वर्किंग कैपिटल के लिए जाएं तो आप जितना वर्किंग कैपिटल मांग रहे हैं, आपके दिमाग में बात निश्चित होनी चाहिए कि जब आप इस लोन को अवेल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ टाइम इतना स्टॉक या इतना बुक डेट्स, इतने डेटर्स हमारी किताबों में क्रिएट हो जाएंगे, है ना। एक्चुअली इतने की देनदारी मेरे लिए होगी तभी उतनी वर्किंग कैपिटल आएगी, तभी वो रिवॉल्व करेगी और आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। गोइंग फर्दर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको आपके बिजनेस के मार्जिन्स मालूम होने चाहिए कि आप जितनी लागत लगा रहे हैं और आपको जितना रेवेन्यू मिलने वाला है, ये कंसिस्टेंट मार्जिन्स कितने हैं, किस मार्जिन्स पे, और ये मार्जिन्स हमेशा जो लोन परसेंटेज होता है उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी आप लोन अमाउंट को ऑनर कर पाएंगे, तभी आप उस अपनी देनदारी को, अपनी उस रिपेमेंट को कर पाएंगे। इसीलिए मार्जिन्स को हमेशा दिमाग में रखें। और इसके सिवा दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो ये है कि मार्जिन्स अपनी जगह पे हैं मगर इसमें डिफॉल्ट्स कितने हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपने 10 लाख का सामान बनाया है, 10 लाख की सर्विस दी है, तो आपको हमेशा एक प्रोविजनिंग रखनी पड़ेगी कि साहब इतना तो ठीक है, मैं पूरा सामान हमारे बिकेगा, मगर हर बिजनेस में, हर प्रकार की एक्टिविटी में एक डिफॉल्ट की गुंजाइश होती है। उस प्रोविजन को आपको रखना पड़ेगा, इस बात को सामने वाले को कन्विंस करने के लिए कि देखिए साहब कि अगर हमारा पूरा नहीं भी हुआ, हमने ये प्रोविजन रखा हुआ है कि हम आपका लोन चुका पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आपसे, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न होता है जिसके उत्तर के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, कि अगर ईश्वर ना करे ये लोन आपको नहीं मिल पाया, ये टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल का नहीं मिल पाया, तो आपको आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है। कभी आपको ये नहीं दिखाना है कि हम इस अपनी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए किसी ग्रांट पे, किसी लोन पे किए या बाहरी सहायता पे निर्भर है। आपको ये समझाना है कि देखिए बिजनेस तो हमारा चलता रहेगा, मगर अगर हमें ये लोन मिला, ये इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन अगर हमको मिलेगी, तो हमारा बिजनेस इस गति से ग्रो करेगा, इस गति से एक्स्ट्रापोलेट करेगा, और जिसका उदाहरण है, जिसका एविडेंस है हमारी करंट एक्टिविटी लेवल, जिसको देखने के लिए ज्यादातर बैंक्स फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं और हमें डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से और विजिबिलिटी के माध्यम से, नॉट फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ, हमको ये प्रमाणित करना है, ये उनके सामने साबित करना है, जो कि बहुत कठिन काम नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मौलिक चीजों पे वर्क नहीं करते हैं, वो लोग बहुत ही बुलिश होते हैं, बहुत ही ज्यादा मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कोई भी आदमी अपने बच्चे को लेकर और अपने बिजनेस को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचता है, बहुत बड़ा सोचता है ना। तो हमको बहुत दिवा स्वप्न, द डे ड्रीम्स के बारे में बातें नहीं करता। उसको बोला देखिए डेफिनेटली वी आर ऑन दिस लेवल, और नॉर्मल ऑर्गेनिक ग्रोथ में हम यहां तक बहुत सरलता से पहुंच जाएंगे। अगर आप लोन नहीं देंगे तो ये गति थोड़ी धीमी रहेगी, लोन देंगे तो ये थोड़ा तेज हो जाएगा। इट शुड लुक लॉजिकल एंड इट शुड गो लाइक दैट। और इसके सिवा मेरे ख्याल से मैंने बेसिक जो मौलिक चीजें थी वो मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। इफ यू हैव प्रिसाइज क्वेश्चंस अबाउट योर प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल से दैट विल बी मोर हेल्पफुल, जिसके विषय में हम बात कर पाए। अगर हम 2 या 3 रिक्वायरमेंट या केस स्टडीज ले सके उदय जी यहाँ पे। Sir, I have few questions अब तक के जो हमारे सेशन हो गए. Can I ask now or should I reserve them for the end of the session? Uday ji, I mean, I think we have 15 minutes left or 20 minutes left. We can take the questions. Little questions there. They are not specific to my project, so maybe it will Yes, benefit everybody who's listening. Yes, please. Shall I go ahead? Yeah, please. Yeah, so once you first regarding the loans, so what is the average percent that is required for whenever you do the repayment? That's one question. Secondly, are there any socio-economic influence which plays a role when you approach any nationalized bank? For example, there's a specific loan for Nari Shakti. So I believe that is specifically for people, for women-owned business. Are there any other socio-economic factors, which plays a role, like maybe tier 2 based manufacturing unit or tier 3 में अगर हमने कुछ office open की है,
ऐसे सिटीज के लिए कुछ स्पेसिफिक लोन्स का इन्फ्लुएंस होता है क्या? And third, sir, last question आपने कहा था that the term loan can be used for things like machinery or office upliftment. So can you explain what is exactly office upliftment when it comes to taking a term loan? Yes, these were my three questions. If you can just answer these three questions. Okay, the first question was socio-economic factors, like, right? Okay, no, the first question is what is the interest rate on the loans that we get from these nationalized bank average, so that we Correct. can consider that into our projected sales, and then see if whether taking that loan will really be beneficial, or whether the profits that we'll be earning a large chunk of. Basically, the interest rate would help us price our product accordingly. Fair enough. Okay, I'll tell you, from the virtue of security, there are two kind of loans. Okay. Okay. Let me give you, आपको पता है इंडिया में सबसे सस्ते लोन्स कौन से लोन होते हैं? हाउसिंग लोन. Okay. Home loan. हाउसिंग लोन आपको 7.5% पे मिलते हैं, 7.45 पे मिलते हैं, 7.6 पे मिलते हैं. एनबीएफसी भी 9-9.5% पे दे देते हैं. ठीक है. और सबसे महंगे लोन कौन से होते हैं? Personal loan. You know, I mean, this is the rule of demand and supply, or insecurity, or the higher the risk, higher the return. ठीक है. Okay. तो अगर हम इस प्रिंसिपल को अपने दिमाग में बैठा लें तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा. अच्छा, ऑल ऑफ यू विल एग्री टू इट कि एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा महंगा लोन देते हैं या गवर्नमेंट बैंक ज्यादा महंगा लोन देते हैं? Might be government. NBFC. Corporate bank. Yes, generally government banks, they give the cheapest loan. Reason being, I'll tell you, because government banks are guided and regulated by RBI, so they cannot offer deposits at any rate. क्योंकि आपको जो लोन मिल रहा है वो आपके डिपॉजिटर्स का पैसे से मिल रहा है. Am I in? तो अब any of these banks like SBI, National Bank, ये आपको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे इन्होंने डिपॉजिट. Okay. तो अब now coming back to the loan requirement, the interest rate हमेशा आपकी सिक्योरिटी के क्वांटम पे होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं आई वॉन्ट टू डू अ बिजनेस और आप मेरा कोलैटरल रख लीजिए और उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, just because of the sake of the security, वो लोग मैक्सिमम 8.5, 9.5% अमाउंट पे मिल जाएगा. माइक ऑन है, कैन वी म्यूट देम? Okay, it's better now. So, I mean, the only factor behind pricing is security. Let me tell you, टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल में टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और वर्किंग कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. रीजन बीइंग, जब भी हम टर्म लोन देते हैं तो हमको मालूम है एक सब्सटैंशियल चीज जिसकी लॉन्गेविटी ज्यादा है वो आ रही है. These are the established rules. एक मशीन आ रही है which is going to stay for a period 3, 4, 5 years. या हम एक ऑफिस में जा रहे हैं तो वहां लैपटॉप्स आ रहे हैं, वहां पे चेयर्स आ रही हैं जो कि कंज्यूम नहीं होगी 1, 1.5, 2, 2.5 महीने में. ओके, तो ये पहले बेसिक रूल ये है. उसके बाद ऑल द बैंक्स, ऑल द लेंडर्स, दे हैव देयर इंटरनल मॉडलिंग, इंटरनल रेटिंग. इंटरनल रेटिंग होती है आपके रेवेन्यू पे, आपके प्रॉफिट पे, आपके आप कितने साल से एसोसिएटेड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ. और रेटिंग, जैसे इफ आई टेल यू अबाउट एसबीआई, तो इंटरनल रेटिंग हमारी SB1 से लेकर के SB14 तक होती है. तो SB1, 2, 3 को सबसे लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और उसके नीचे जितने भी होंगे उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. और प्राइसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिसाइड करती है, कभी भी गवर्नमेंट लोन्स होते हैं वो नॉर्मल बिजनेस लोन से सस्ते नहीं होते हैं. दिस इज नॉट अ नॉलेज इन डोमेन. रीजन भी, गवर्नमेंट लोन्स को लेने के लिए एक पर्टिकुलर फीस पे की जाती है गवर्नमेंट गारंटी फंड को. अभी मैंने अपने स्पीच के स्टार्टिंग में बोला था कि व्हेनेवर वी लेंड, तो गवर्नमेंट हमको एक गारंटी देती है कि गॉड फॉरबिड अगर आपका ये लोन खराब होगा तो हम ये पैसे दे देंगे. गवर्नमेंट हैज अ गारंटी फंड फॉर दैट, और उस गारंटी फंड के लिए कुछ फीस दी जाती है. तो वो फीस हम ज्यादातर केसेस में बैंकर्स
और बोरोर्स आधा आधा मिलके बांटते हैं, तो वो मार्जिन आपके लोन अमाउंट में बढ़ जाता है। तो इफ यू गो फॉर मुद्रा, तो आप मुद्रा लोन में देखेंगे कि 10.5%, 11%, 11.5%, 12% तक रेट पे आपका मुद्रा लोन होता है। या आप सीजीटीएमएससी लोन में देखेंगे तो आप देखेंगे 11.5 से 13.5% तक होता है। मगर आप कोई सिक्योरिटी लेकर के जाएंगे तो वही लोन आपको 9%, 9.5% में मिल जाएगा। अब इसके पीछे कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन या किसी बैंक का जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आज से 200 साल से पुराने चले आ रहे बैंकिंग प्रिंसिपल जिम्मेदार है। मेरे ख्याल से मैं समझा पाया आपकी इंटरेस्ट रेट कहां से डिसाइड होता है। Yes, understood. Yes, pretty clear about it. हाँ, समझ में आया। But as you are participant in Silcot, there are certain loans जिसमें सब्सिडी होती है, like नारी शक्ति, हाँ, but ये सब्सिडीज सस्टेन्ड नहीं होती हैं। These subsidies are for a particular period of time. okay, कहीं पे इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, कहीं पे प्रिंसिपल सब्सिडी होती है, ये डिपेंड करता है आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या है। तो अगर आप मुझे अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटी आफ्टर सेशन आई विल शेयर माय मेल आईडी उदय जी बताइएगा, तो मैं उसको बता पाऊंगा कि आप उस सब्सिडी के लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट सब्सिडी के। बट दिस विल नॉट बी सस्टेनेबल, ये फॉर पर्टिकुलर ईयर ही होगी, ठीक है। बट इफ यू आस्क मी द मोडालिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, सब्सिडी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट। understood. मेरे ख्याल से मैं क्लियर कर पाया हूं कि हाउ इट गोज द इंटरेस्ट रेट। जी बिल्कुल। Second question is tier 2 and tier 3 cities. हम्म See, most of the participants, I mean, यहाँ पे जो हैं वो जिस टिकट साइज में ऑपरेट कर रहे हैं, they are from tier 2 and tier 3 cities, और even if they are from मुंबई और पुणे, तो उनका बिजनेस ऑपरेशंस ऐसी ही जगहों पे है। और इनफैक्ट इफ वी गो बाय द इकोनॉमिक पर्व्यू ऑफ दिस कंट्री, वी नीड दिस काइंड ऑफ सेटअप ओनली। Right. हाँ, तो all these loans, if I give you a data, banking data, so 90% of all these loans, they go to tier 2 and tier 3 cities only, because all these metro cities, they already have an established lending system. For example, if I tell you, HDFC से लेकर के SBI से लेकर पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो मुंबई में 50 to 60% पेनिट्रेट कर रहा है। यू नो, देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड सिस्टम जो कि क्रेडिटर डेबिटर का सीधे, जैसे डायमंड मार्केट के बारे में बात करें, दे डोंट नीड एनी बैंकिंग सिस्टम। द ट्रस्ट फैक्टर इज ऑलरेडी देयर फॉर 40-50 ईयर्स। आप दिल्ली जाएं या आप हैदराबाद जाएं तो वहां पे है। तो वहां पे इन शहरों को एक नए बैंकिंग सिस्टम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पे आप किसी भी लेवल से स्टार्ट करेंगे आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। आप छोटा पान का दुकान भी लगाते हैं और आपको लगता है तो आपका जो भी सप्लायर है वो ठीक है 15 दिन में दे देना। मगर क्या होता है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज एंड स्पेशली वो नए रूरल सेंटर्स वहां पे जहां आप जो अपकमिंग आ रहे हैं वहां पे जहां पे कोई रेवेन्यू मॉडल या कोई ट्रस्ट सिस्टम अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, वहां पे आई मीन वी आर एक्सपीरियंस दिस कि जहां पे कि बैंकिंग सिस्टम की बहुत जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि आई मीन दिस इज अ कंस्ट्रेंट कि बैंकिंग सिस्टम जिस गति से बढ़ता है उस गति से ज्यादा जो स्मॉल लेंडर्स हैं या अनरेगुलेटेड एनबीएफसी है वो वहां पे पहुंच जाते हैं, अपनी विजिबिलिटी दिखा देते हैं। बट आप लोग सिरकॉट से जुड़े हैं और मुझे मौका मिला है कि एसबीआई को रिप्रेजेंट करने का, कि आप बिना इंफॉर्मेशन गैप रखे, इफ यू रीच आउट टू ऑल दीज regulated nationalized banks and if you are well prepared, there is no reason that you won't get it. आपका थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट होगा, जस्ट रीजन कि बहुत ढेर सारे लोग इस क्यू में आते हैं। लेट मी टेल यू, एंड ऑफ द डे बैंक्स हैव टू लेंड दिस मनी, like 18% of the money it goes to agriculture, okay, so some 3 to 5% of the money has to go to reach this sector, if not through SBI, eventually SBI will give it to SIDBI. तो इफ वी गेट द राइट डेस्टिनेशंस, ज्यादातर बोरोअर्स या प्रपोज बोरोअर्स जो हमारे पास आते हैं वो अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने फ्यूचर रेवेन्यू फोरकास्ट को लेके प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। उनको यही नहीं पता होता है कि अगर इफ वी कम अप विद दिस काइंड ऑफ मशीनरी और दिस काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ माय ऑफिस, और अगर इतना परचेज ऑर्डर मिलेगा तो हम कंजर्वेटिवली हमारा रेवेन्यू कितना होगा और इस लोन को हम कितने दिन में चुकाने में सफल होंगे। तो अगर हम एक बेसिक होमवर्क करके आए, और ये कंजर्वेटिव होना चाहिए, मेरा ये मान लीजिए ये शार्क टैंक इंडिया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही बोलेंगे कि हम 20 लाख से 80 लाख जा रहे हैं तो 95% ऑफ द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंकर्स, दे वोंट बिलीव योर मैकेनिज्म। हो सकता है आप ऐसा कर पा रहे हैं,
आई विश, और बहुत लोग कर भी पा रहे होते हैं, बट bankers and lenders, they go by the law of average. Correct. They don't understand exceptions because they get guided by the established rules, principles, जो कि पिछले 100-150 सालों में हुए, ठीक है, और उसमें बहुत इनोवेशन की गुंजाइश भी नहीं होती है। तो जैसे मैं आपको पूछना चाहती थी, अभी SBI जो है, स्पेसिफिकली का SBI, तो SBI is there in Mumbai also, जैसे आप मुंबई से बात कर रहे हैं अभी, SBI is in Pune also, and SBI is in cities like Nashik and Nagpur also. Yes. So, अगर मैं SBI ब्रांच नासिक अप्रोच करूं, देखिए, नासिक is a big city, big center, और नासिक में एटलीस्ट 40 से 45 SBI की ब्रांचेस हैं। Okay. You should know which branch to go. Okay. But will it affect the city in which I approach? Like, अगर मैं और because my other two co-founders are from tier 2, tier 3 cities. I'll tell you, आपका कन्वीनियंस ये होना चाहिए कि आपका जो एक्टिविटी लेवल है, फाउंडर्स कहीं से भी हो सकते हैं। Okay. Try to understand, आपके एक्टिविटी को बैंकिंग की जरूरत है ना, ठीक है, जहां पे, क्योंकि आप वो जो पैसा जाएगा या पैसा आएगा उस एक्टिविटी के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी है, तो आपके फाउंडर्स कहीं के भी हो, अगर उस एक्टिविटी से आप प्रॉक्सिमिटी ढूंढिए, ठीक है ना, क्योंकि फाउंड एक बार क्या होता है, नाउ वी आर सिटिंग इन 2025, वंस यू गेट द इंटरनेट बैंकिंग, और उसके बाद क्या होता है, चेक सिस्टम है, ATM सिस्टम है, तो आपको बैंक जाने की बहुत जरूरत नहीं होती, साल में 1 या 2 बार, तो फाउंडर की प्रॉक्सिमिटी हो उसकी बहुत जरूरत नहीं है। मगर अगर आप बोरोइंग रिलेशनशिप रख रहे हैं या अकाउंटिंग रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहां पे आपकी फैक्ट्री है या एरिया ऑफ एक्टिविटी, आप वहां का कोई ऐसा बैंक और ऐसी ब्रांच आइडेंटिफाई कीजिए जो इस डोमेन में ऑपरेट करता हो। Understood. वहां अगर आप किसी एक्टिविटी को लेके जा रहे हैं, तो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ SMECCC। उसका मतलब होता है कि हमारा प्रोसेसिंग सेंटर होता है जो कि लोन प्रोसेस करता है। अब मान लीजिए, अब मुंबई में 4 लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, एक बांद्रा में। अब उनके पास रोज 5 फाइल आती हैं, 10 फाइल आती हैं। अब एक फाइल आती है, वो कहते हैं साहब मैं आया हूं, इफ पीपल फ्रॉम हियर अंडरस्टैंड मुंबई, मैं आया हूं शाहपुरा से, और एक आदमी आता है कहते हैं साहब मैं आया हूं चेंबूर से, ठीक है, दोनों का लोन रिक्वायरमेंट 15 लाख है या 10 लाख है, तो अंडरस्टैंड कि ये एक ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट है कि जो बांद्रा में बैठा हुआ है वो आदमी चेंबूर को आसानी से हैंडल कर लेगा। तो अगर वो शाहपुरा वाला यूनिट है, अगर वो कल्याण जाए तो उनके लिए ज्यादा, कल्याण में SMECC है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, नासिक में अगर कोई फैक्ट्री है, कोई एक्टिविटी लेवल चल रहा है, उसके फाउंडर नागपुर के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फाउंडर बैंगलोर के हो सकते हैं, पुणे के, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बिजनेस। तो आप एक्टिविटी के साथ प्रॉक्सिमिटी रखिए और मेक श्योर कि वो ब्रांच डोमेन स्पेशलिस्ट हो। आप देखिए, फ्रॉम द RBI गाइडलाइन, और इस देश में कोई बैंक आपको ना नहीं, अगर आप रिटेल ब्रांच में जाके कहेंगे कि साहब मुझे बिजनेस लोन दीजिए, तो वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम नहीं करेंगे, मगर उनका डोमेन वो नहीं है, वो बार बार किसी से पूछ के आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, वो बार बार, क्योंकि वो 100 काम जो दिन में कर रहे हैं, जो उसमें से 95 काम इससे पर्टेन नहीं करते हैं। तो इट्स बेटर टू रीच आउट टू अ फाइनेंशियल इंक्लूजन ब्रांच और SME ब्रांच और स्टार्टअप ब्रांच, और वी हैव ऑल दीज ब्रांचेस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स। हिंदुस्तान में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे ऐसी ब्रांचें नहीं है, तो नासिक वाले को नागपुर या नासिक वाले को मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव एन एस्टैब्लिश्ड सेटअप इन ऑल द सेंटर्स। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ SBI, यू गो टू HDFC, यू गो टू पंजाब नेशनल बैंक, सबके सेटअप्स हैं, बस हमको मालूम होना चाहिए। Understood. And sir, what exactly is office upliftment under term loan? Anything which can be touched and feel. Okay. Like laptop, chair, bulbs, like you get it. अभी क्या है कि बहुत ढेर सारे, दिस इज एरा ऑफ इनोवेशन, बहुत ढेर सारे स्टार्टअप्स आते हैं एंड दे रीच आउट टू अस एंड दे से कि हमको ई-कॉमर्स विजिबिलिटी के लिए पैसे देने, अमेजोन को देने, फ्लिपकार्ट को देने, या फिर हमको एक पेटेंट करना है, या हमको इनिशियली सैलरीज लगानी है, या हमको एक सॉफ्टवेयर खरीदना है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मोडेलिटी अभी तक आया नहीं है कि इसके तहत लोन दिया जा सके। आई मीन द बैंकिंग सिस्टम इज सीरियसली वर्किंग ऑन दैट, मगर एनीथिंग विच कैन बी टच्ड, आपको कब खरीदना है, मतलब ऐसी चीज जो लास्ट करे, है ना। आपका एक प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कहीं कि हम 20 चेयर खरीदेंगे, 6 लैपटॉप खरीदेंगे, 2 स्पीकर, 4 एनीथिंग, तो उसके लिए यू कैन गेट अ लोन। Thank you so much, sir, for answering all my questions. I really appreciate it. Thank you. Yes, please.
Any more questions? I think it has been very interactive session. All the You startups mentioned in the beginning that there are grant and equity also, the other two forms. Equity के लिए I'll tell you, you need a certain level to reach out. Equity के लिए अभी आपको जो equity मिलेगी, I will not comment on that because वो बहुत महंगी equity होगी. पहले आप business establish कीजिए, एक level पे पहुंचिए. Because we already have an established ecosystem of equity in Pune, Bengaluru, Gurgaon, Mumbai. तो मगर for that level equity players हमेशा देखते हैं कि आप 200% और 400% की स्पीड से बढ़ रहे हैं. तो वो स्टेज थोड़ी दूर है. आई विश कि आप में से ढेर सारे प्लेयर्स उस लेवल पे पहुंचे, बट अभी हम उस स्टेज पे हैं कि इट्स लाइक कि अभी बेबी वॉक्स, बेबी स्टेप्स, और उसके बाद रीचिंग आउट नंबर कीजिए अपने नंबर्स को. इसीलिए मैं कहता 3 तरीके से आपके पास पैसा आता है: ग्रांट, लोन एंड इक्विटी. तो फंड हाउसेस हैं, और मगर वो जिस टिकट साइज में ऑपरेट करते हैं दैट इज ह्यूमंगस, वो बहुत बड़ा होता है. तो इट इज यू कैन गूगल इट. आई मीन वी हैव एटलीस्ट 1 लाख करोड़ ऑफ equity system. Basically, वो Shark Tank is a glamorous form of equity system, AIF system. Sir, I have a question. Sir. So, like CIRCOT may give us grant. If we get grant, we will invest that in machinery. Yes. So, assume that I invest 20 lakh rupees in machinery. Yes. And in 4-5 months, I realize that I am getting good business. Good, yes. So, I can also hypothecate this machinery to bank and get a CC. Definitely. So no, I want to understand if I have something to hypothecate somewhere around 20 lakh rupees, and I am saying that I will have a revenue of say 2 lakh rupees per month. What should be my CC limit that can be sanctioned? I tell you, there are 2 things. Machinery is never hypothecated for working capital. Machinery can only be hypothecated for a term loan. Okay. Point number 1. I have mentioned earlier, working capital primary security is always a stock or a book debts. Okay. So now you know your business best, and as per the modality or the account statement, or right from the inception of your infusion of your money and realization of that particular amount is the working capital cycle. So your working capital cycle can be a 10 days place, or it can be a 90 days system. So only your account system, your revenue realization, that is a kind of assessment. So if you tell me your monthly sale is 2 lakh rupees, so it comes like your yearly sales is 24 lakh rupees. So if you ask me if it is a 90-day cycle, I'm giving you an example. So yes, sir. So your cost is, if after margin, if your cost looks like 20 lakh rupees, then it is like divided by 4, 5 lakh rupees, and minus margins, 25%, close to 4 lakh rupees. So okay. It is a working capital assessment. So it will be like, what is your working capital cycle? That is the most important thing. Thank you, sir. Yes, Udayji, do we have more queries or questions? Yeah. Any startup has any questions, then they can ask. If we are running out of time, as it has been around 1 hour and around 10-15 minutes are getting crossed. So any startup having any query can ask. We can take a last question. After that, if any startup having want to brief discussion, then they can. Udayji, we can't hear you. Hello. Sorry, am I audible now? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Better. yes. Yeah, so actually I'm saying that if any startup has any query, last question we will take. Apart from that, any startup having brief discussion on the particular scheme and the guideline and the pathways to get it cracked, they can directly contact to Anu sir, and I will share the contact number into the group. Okay, so actually it is very practical and a very insightful session, sir. It was very great. Actually, it was reflecting your experience with the startups towards identifying the schemes and getting it applied, how to get it cracked, and all those things. You have highlighted many initiatives and the many processes that are very important into this particular banking domain towards comparing with the different housing loans as well as the business loans, these aspects. So I hope all startup has got good benefit out of it.
And we ICRS Record really appreciate your time and value into this particular day of in the weekend. Thank you so much, sir. Thank you, Teji. Thank you all. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Hello. Thank you, sir. Hello. Yes, Seemaji, you want to ask something? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can we meet sir in Mumbai at Yeah. their branch? Yeah, is it Because we have possible? already approached the SBI branch from the bid. That's why Prior to that, we I need will share a prior to that, I will share contact number of sir. You discuss it. Is the particular topic can be solved into the branch? You can after discussion you can decide that. Okay. yes. Okay. Yeah. Is it fine, Anush sir? Yeah, fine. Yeah. Thank you so much. Sir, I have a small question. Can I? Please. Or Yes, I please. will contact. No issue. If it is a Sir, I have yeah. yes, sir. Uday, sir. Yes, please continue. Yeah. Sir, I have a PO from one of MNC, and it's more than 20 lakh, but I don't have. I need money, and their payment terms is they will give me 50% after delivery and 50% on 30 days. So can I avail any loan from bank or anything? How means I have visited one of SBI branch. Means my current account is in SBI branch at Kolhapur. I have visited. They said we don't know how can we handle those things. What is your current level of activity? Are you making any kind of revenue? Yeah, we are making revenue, and we have For how long? From March 2025. I mean, this March only. Yeah, and we have good order from MNC. Means B2B order. Okay. Okay. And what is the structure of your entity? Is it a private limited company, partnership, or sole? Private limited company, and manufacturing unit is in Kolhapur, near Girgaon, Kannedi. Okay. So how many directors are there? 2 directors are there, and any of the paper 2 directors are there. Myself. Any women or SC/ST director? Right now, no. Then the only option left is Mudra loan. Okay. You can get a Mudra loan. That is the only option left. Okay, sir. You are eligible for that, but again, as I mentioned, you need to be very well prepared with your documents and your project report and everything, and conservative. Yeah, definitely, sir. You can approach the SMECC of Kolhapur. If you want, SMECC of Kolhapur. you can. I'll share my mail ID. I can give you the coordinates of Kolhapur. Definitely, sir. Thank you so much. Yes, please. Yes. Okay, thank you so much, sir, for again taking 1-2 questions more. We will stop here, sir. We value your time. You might be busy in current day, so we will stop the session, sir. Thank you all the startups. If having any query, I will share the contact number directly. Have a conversation with the sir on a call. Thank you so much. Thank you, then. Thank you so much. Yeah. Thank you.